Hello friends, I Aditya Kumar Shukla, Assistant Professor, Amity School of Communications, Amity University, Madhya Pradesh, Gwalior. Today I will talk on elements of radio program production. रेडियो प्रोग्राम प्रोडक्शन के कौन कौन से तत्व हैं उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। उससे पहले ये जानना जरूरी है कि रेडियो होता क्या है। We all know that radio is a medium of spoken words, language, sound effects, music and silence. These all five elements makes radio a medium, a mass medium. It is for them who are not able to write. It is also for them who are not able to see anything by eyes. They can feel the radio, they can feel radio language, they can feel radio sound effect, they can feel the music of radio, they can feel the silence of radio. So some elements are required to take care of while scripting any program for radio and while production of any radio program. These five elements are रेडियो प्रोग्राम प्रोडक्शन के 5 तत्व जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। उनमें सबसे पहले आता है स्पोकन वर्ड्स, क्योंकि रेडियो केवल भाषा का माध्यम है, बोलने का माध्यम है, इसलिए स्पोकन वर्ड्स का बहुत अधिक महत्व बढ़ जाता है। दूसरा है लैंग्वेज। लैंग्वेज मीन्स भाषा, हम किस तरह की भाषा का यूज कर रहे हैं। रेडियो में भाषा का बहुत ज़्यादा महत्व है। भाषा हम कैसे यूज कर रहे हैं, अगर हम ज़्यादा हैवी भाषा यूज करते हैं तो लोगों को वो समझने में दिक्कत आती है। साउंड इफेक्ट्स, we will explain it in next slides. Music and silence. Spoken words. We all know that words are the powerful elements. Words, because word create pictures. Those who are not able to see anything, for those the word create pictures, the word create image. For the imagination of the presence of any human being, the words are powerful elements. So the modulation of words are also required for the effectiveness of the radio programs. Language. We all know that the radio is a medium for all. For all means for those who are not able to write, who are not able to understand the typical words, who are not able to see anything. So for those we should prefer a simple language which will be understandable by common man. If we use heavy words for presenting our program, you are not able to communicate your key ideas of the program. Now the third one is sound effects. Sound is the creation of nature. We all know that when the language was not created, when the words are not created, we have something which we can feel, which we can visualize, that is sound. For creating visualization for some scene, the sound plays an important role. If we want to create a scene that someone on the door, so we will include a sound of doorbell. By the sound of words, the listener can imagine the scene of morning. By the sound of owl, the listener can imagine the scene of night. Now we will explain about the effects, various sound effects. First is spot effects. Spot effects means जो त्वरित effects होते हैं, जिनको त्वरित बनाना होता है। ऐसे effects जैसे हम डोर क्लोजिंग का इफेक्ट बनाना चाहते हैं तो हम डोर क्लोजिंग का साउंड इफेक्ट डालेंगे। गन शॉट, किसी ने किसी को शूट किया है, अगर हम दिखाना चाहते हैं, विजुलाइज कराना चाहते हैं तो हम गन शॉट का साउंड इफेक्ट डालेंगे। इसके अलावा जो जैसे कुत्ते भौंकने की आवाज़ है, चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ है, इस तरह की आवाज़ों को हम स्पॉट इफेक्ट्स बोलते हैं। एटमॉस्फेयर इफेक्ट, एटमॉस्फेयर इफेक्ट्स में ऐसे इफेक्ट्स आते हैं जो कोई एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं। जैसे हम कहीं क्लब में हैं, हम चाहते हैं कि उस क्लब के साउंड को हम इमेजिन कर सकें, उसको हम विजुलाइज कर सकें, तो हम क्राउडेड क्लब को किस तरह से दिखाएं, लोगों को बता पाएंगे रेडियो के माध्यम से। उसके लिए हमें एटमॉस्फेरिक इफेक्ट्स की सहायता लेनी पड़ती है। बैकग्राउंड इफेक्ट्स, ठीक है, बैकग्राउंड इफेक्ट्स और एटमॉस्फेरिक इफेक्ट में समानता दिखती है, लेकिन ये कुछ तरह से अलग हैं। जैसे कई जगह कई साउंड एक साथ मिक्स होते हैं। आपने देखा होगा, आप रेलवे स्टेशन पे हैं, मान लो, तो वहाँ लोगों की आवाज़ भी है, अनाउंसर की आवाज़ भी है, और साथ में ट्रेन आ रही है उसकी आवाज़ भी है। तो इस तरह के इफेक्ट्स को क्रिएट करने के लिए बैकग्राउंड इफेक्ट्स डाले जाते हैं, जहां मिक्सर होता है कई इफेक्ट्स का। अगर हम चाहते हैं कि हमें एयरपोर्ट का एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है तो हमें वहां कई तरह के साउंड इफेक्ट्स को एक साथ मिक्स करना पड़ेगा। ये होता है बैकग्राउंड इफेक्ट। नाउ द फोर्थ वन इज फॉले इफेक्ट। फॉले इफेक्ट एक इफेक्ट है जिसको क्रिएट किया गया है। फॉले इफेक्ट नाम यूज किया जाता है जैक फॉले के नाम पे, ठीक है, जो अर्ली साउंड पॉइनियर माना जाता है जिनको। ये आर्टिफिशियल इफेक्ट है जिसको क्रिएट किया गया है फॉले के द्वारा, इसलिए इसको फॉले के नाम से जाना जाता है। प्रोसेस इफेक्ट, आप जानते हैं कि हमारी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है, इस ऐसे में हम कई तरह के इफेक्ट्स जो है वो खुद क्रिएट कर लेते हैं। ऐसे इफेक्ट को प्रोसेस इफेक्ट कहा जाता है। नाउ द फोर्थ वन इज म्यूजिक।
Music is a key part of any radio program. We all know, if we are a listener of a radio, then we all know what is the importance of music in a radio program. For beginning, we required music. For ending any program, we required music to wound our listener with our program. If we want to wound our listener with our program, we want to give some music effect, or we want to give some music for our program. Music is also used as a filler between two scenes. If we want to create a scene, जैसे हम मान लें, अगर जैसे पर्दा गिरता है या पर्दा उठता है, इस तरह का सीन हमको क्रिएट करना है, विजुलाइज कराना है अपने लिसनर को, तो हम वहाँ फेड इन और फेड आउट टेक्निक का यूज करके हम अपनी स्क्रिप्ट इस तरह से लिखें कि फेड इन फेड आउट टेक्निक का यूज करके हम लिसनर को ये समझा पाएँ कि पर्दा गिर रहा है और पर्दा उठ रहा है, या दो सीन्स ऐसे हैं जिनके बीच में हमको कुछ फिल कराना है, ऐसे सीन्स को भी फिलिंग के लिए हम म्यूजिक का यूज करते हैं. द लास्ट एंड नॉट द लीस्ट बट साइलेंस. साइलेंस इज द मोस्ट पावरफुल कम्युनिकेशन. साइलेंस बहुत पावरफुल कम्युनिकेशन है. जैसे हमें कई चीज़ें हैं जो हम बोल के नहीं कह पाते, वो हम साइलेंस से कहते हैं, चुप रह के कहते हैं. मान लो आपको आपके घर पे डांट पड़ रही है, हम एक रियल लाइफ का एग्जांपल लेते हैं और हम साइलेंट हो जाते हैं, चुपचाप खड़े होते हैं, हमारा कोई रिएक्शन नहीं होता है. इसका मतलब कि हम उस डांट को ग्रहण कर रहे हैं, किसी ना किसी रूप में हम उसको समझ रहे हैं कि हमें क्यों डांटा जा रहा है. वो उसी तरह का साइलेंस हम रेडियो में भी यूज करते हैं, किसी चीज़ की एब्सेंस को दिखाने के लिए. ठीक है, कुछ एब्सेंट है, इस चीज़ को दिखाने के लिए हम रेडियो में साइलेंस का यूज करते हैं. और साइलेंस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रेडियो प्रोग्राम में. ठीक है, जैसे कोई सीन हम क्रिएट करना चाहते हैं, रेडियो ड्रामा में कोई टेंशन सीन क्रिएट करना है हमको, कि कोई किसी के थप्पड़ मार रहा है, कि किसी ने किसी को स्लैप कर दिया है, तो उस स्लैपिंग के बाद एक साउंड हम ऐसा दे सकते हैं, एकदम साइलेंट कर देते हैं, हम पॉज कर देते हैं, जिससे पता चलता है कि टेंशन बढ़ गया है. इसके बाद जैसे हम कोई ऐसा सीन, हमें कोई टेरर सीन क्रिएट करना है, मान लो कोई आ रहा है, एकदम साइलेंट सीन है, कोई आवाज़ नहीं है, केवल पदचाप की आवाज़ है, केवल कोई चल रहा है, टप फिर साइलेंस, टप फिर साइलेंस. इस तरह के जो सीन क्रिएट किए जाते हैं उनमें साइलेंस का रोल बहुत होता है. इसके अलावा लेकिन साइलेंस कई बार रेडियो प्रोग्राम्स के लिए खतरा भी सिद्ध होता है. उसके पीछे रीजन है, अगर हमने लंबा साइलेंस दे दिया तो लिसनर जो है, लिसनर जिस तरह से हमसे कनेक्ट है उसी तरह से हमसे दूर भी हो सकता है. इसलिए हमें साइलेंस का यूज करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि हम किस तरह साइलेंस का यूज करेंगे और अपने लिसनर को किस तरह से कनेक्ट कर पाएंगे अपने प्रोग्राम से. ये 5 तरह के एलिमेंट बनकर स्क्रिप्ट से लेकर प्रोडक्शन तक अगर हम 5 एलिमेंट्स का ध्यान रखेंगे तो हम एक अच्छा रेडियो प्रोग्राम दे पाएंगे, जिससे लिसनर है जो सुन रहा है वो विजुलाइजेशन क्रिएट कर पाएगा और एक अच्छा प्रोग्राम हम लोगों को परोस पाएंगे. धन्यवाद.